Hello everyone. So today we discuss about the chapter I took from NCRT of class 7. The chapter we discuss in this video is respiration in organisms. So what is respiration? Respiration we call श्वसन यानी कि जो आप सांस लेते हो. So what is the function of the respiration in organism and what is the why we respire? हम सांस क्यों लेते हैं या उस जो एयर को लेते हैं हम उसका व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दैट एयर इन आवर बॉडी. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. सो इन योर होम your parents told you many times they insist you to take the food. Why? Because from food you get energy and that energy use during the respiration. Okay, तो जो आप श्वसन क्रिया होती है आपकी जो रेस्पिरेशन होता है that time you use that energy because the food stored energy. Okay, so in organisms यानी कि human beings and any other living organism that have smallest unit in our body that is called cells. So we talk about the cellular respiration कि आपके cells how they work. Okay, so how they respire. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. अगर जो प्रोसेस होता है जब आप खाना खाते हो उस खाने को जो ब्रेक डाउन होता है उस फूड का एंड उस फूड को खा के आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. Next point is aerobic respiration. What is the aerobic respiration? When breakdown of glucose यानी कि food occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. अगर आपका फूड का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यानी कि छोटे टुकड़ों में बॉडी में हो ब्रेकडाउन हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है? यूजिंग ऑक्सीजन. जो आप ब्रीथ करते हो एयर अंदर लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, द फर्स्ट वन इज सेलुलर. व्हाट इज सेलुलर? यानी कि आप जो फूड यूज़ करते हैं उसका जो ब्रेकडाउन होता है उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. एंड द एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो द सेलुलर रेस्पिरेशन बट there are different aerobic and anaerobic. So in aerobic we use oxygen, okay, for breakdown of food, breakdown of glucose in your body, that is called aerobic respiration. Next point is anaerobic respiration. Food can also be broken down without using oxygen. यानी कि आपका जो बॉडी है फूड ब्रेक डाउन होता है टूटता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है वो बिना ऑक्सीजन के भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड anaerobic respiration. In some cases in our body anaerobic respiration response, and in some animals and other organisms they only use anaerobic respiration. Okay, so glucose यानी कि food in the presence of oxygen, carbon dioxide plus water plus energy, that is ये इक्वेशन बनती है इसके लिए. एंड नेक्स्ट है ग्लूकोज यानी कि ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज़ mostly used in yeast. Glucose in the absence of oxygen यानी कि if अगर फूड जो टूटता है ब्रेक डाउन होता है in the absence of oxygen they make alcohol plus carbon dioxide plus energy. We all know when we breathe out we क्या छोड़ते हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो और आपको साथ में एनर्जी मिलती है ना. तो when we respire in the absence of oxygen then alcohol will make plus carbon dioxide and energy. And in glucose breakdown in the presence of oxygen carbon dioxide बनेगा and water बनेगा और energy release होगी. Okay, same process for glucose in the absence of oxygen, but here one more thing is made, that is alcohol. And in the glucose in the presence of oxygen they make water. Okay, maybe they ask about in the presence of oxygen what they make the cells, what they make cells, they make carbon dioxide, water, energy, and in the absence of oxygen they make alcohol, carbon dioxide and energy.
Okay, these two are common, carbon dioxide and energy, but the difference is water and alcohol. Okay, नाउ ग्लूकोज इन मसल्स, आपका जो ग्लूकोज होता है मसल्स कैसे होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बट यू डोंट हैव इनफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी, सो बट वो हमें एक्सरसाइज करते वक्त मसल्स को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द फूड, और फूड से एनर्जी कब होगी, जब वो ब्रेक डाउन होगा, तो दैट टाइम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ग्लूकोज टूटता है फॉर द यूज ऑफ मसल्स, फॉर द यूज ऑफ योर एनर्जी, तो दैट टाइम लैक्टिक एसिड इज मेड। ओके, लैक्टिक एसिड बनता है एंड एनर्जी रिलीज होती है। अंडरस्टूड? सो जितना हो सके आप थोड़ा आराम से एक्सरसाइज करिए, बिकॉज अगर लैक्टिक एसिड बॉडी में बनता है दे गिव यू सम पेन इन योर बॉडी। ओके, जब आप ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा कभी देखना, इफ़ यू सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कुछ पहाड़ी वाले एरिया में जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, या यानी कि जैसे लाइक जिम, तो आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, उसमें ऑक्सीजन कम होती है आपकी बॉडी में, दैट टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है फूड से, और जो फूड ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट टाइम बॉडी विल मेक लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज। ओके, we human being breathe through lungs. Okay, this is the basic thing कि हम ह्यूमन बींग कैसे ब्रीथ करते हैं, थ्रू लंग्स। कॉकरोच ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरल्स। ओके, स्पाइरल्स। तो जो कॉकरोच होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, जो उनके बॉडी में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं बोथ साइड, द ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरल्स। ओके, and how the insects breathe through network of air tubes called tracheae. Okay, tracheae। तो जो insects होते हैं कैसे ब्रीथ करते हैं, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, उनके बहुत सारे एयर ट्यूब्स होते हैं उनकी बॉडी में, एंड दैट ट्यूब आर कॉल्ड ट्रैकिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म breathe through their skins. These are very important points because in the in your exam they directly ask how earthworm breathe, so they breathe through their skins. Understood? Though frogs have a pair of lungs like human beings, they can also breathe through their skins which is moist and slippery. वैसे फ्रॉग्स में जो होते हैं यानी कि मेढक में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं लाइक ए ह्यूमन बींग्स, बट दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू दियर स्किन, जो विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लीपरी होती है। आपने कभी टच किया होगा तो क्या होते हैं, यानी गीली गीली सी अजीब सी एंड स्लीपरी होती हैं उनकी स्किन, एंड विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन दे ऑल्सो ब्रीथ, ओके, थ्रू दियर स्किन। नेक्स्ट है फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो फिश होती हैं किससे ब्रीथ लेती हैं, किससे सांस लेते हैं, गिल्स से। ओके, एंड हेयर इज नेक्स्ट पॉइंट इज डॉल्फिन्स जो होते हैं वो गिल से नहीं लेते हैं, वो उनके नोज़ में ऊपर में एक होल्स होता है, या ऊपर आके जब ऊपर ज़मीन से पानी से अंदर से निकल बाहर आते हैं तब जाके सांस लेते हैं, वो गिल्स के थ्रू अपने सांस नहीं लेते हैं। अंडरस्टूड? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, एंड these points will help you in your exam because I make some small notes for you, so I hope this helped you in your exam. So we will meet again in next chapter. Bye.